Hey there, welcome to my channel Endless Bio. This is Suman Singh and we will be continuing the chapter Molecular Basis of Inheritance Part 4. In this part, we are going to talk about DNA replication, a very important topic from your board point of view. Okay, अभी DNA replication से पहले what you should know is central dogma. Now, what is central dogma? Central dogma of molecular biology states that DNA produces RNA which produces your protein. So अभी तक आपको ये समझ में आ गया है कि all the characters that you have है ना, अगर आपके बाल कर्ली हैं, अगर आपके आईज का एक कलर है या आपकी एक पर्टिकुलर हाइट है, so this is all your characteristic, different characteristics, okay, and these characteristics are due to different types of protein which is produced in our body. Like अगर मेरे बाल कर्ली हैं तो उसकी वजह केराटिन प्रोटीन है, and the amount of keratin protein that my hair has makes it more curly. Okay, so this keratin protein gives the curliness characteristic to my hair. Now, why is that, or how my body make that particular kind of keratin? So that is because whatever RNA instruction on RNA comes, and from where the instruction on RNA comes, that comes from the DNA. So you take any organism for that matter, DNA gives rise to RNA. So whatever code or whatever blueprint is there on the DNA, based on that your RNA is formed. You can see here, this is the double helical structure of DNA, and this is how the RNA will be formed, and from this RNA you will get protein, and this protein gives different characteristics. So about this we will see in detail further, and this central dogma was given by Francis Crick. So the scientist Francis Crick, he gave the central dogma of molecular biology, which states that DNA produces RNA, and from RNA we get the protein. Now, DNA to RNA is what is called as transcription. The process of conversion of DNA to RNA is known as transcription, and from RNA to protein, the process of conversion of RNA to protein is called as translation. DNA से RNA हमारा ट्रांसक्रिप्शन में बनता है और RNA से प्रोटीन जो है वो हमारा ट्रांसलेशन में बनता है. तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हम लेटर पार्ट में अगेन इन डिटेल कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, कैसे एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता है, तो ये हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम बात करेंगे इस प्रोसेस की, दैट इज रेप्लिकेशन. DNA अपनी ही एक कॉपी बना सकता है, दैट इज योर रेप्लिकेशन. और एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं तो वी नो दैट वी आर फ्रॉम लाइक यू हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर बोथ योर पेरेंट्स, है ना. द फादर एंड द मदर गिव्स यू the characteristic, and both the characteristic is there in the offspring. Okay, now आप ऐसे सोचिए कि फादर का जो डीएनए है वो डबल्ड हो जाता है. ओके, मदर का डीएनए डबल्ड हो जाता है और उनकी आधी कॉपी जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर होती है. सो अगर आपको याद होगा आपका ग्रेड 10 या फिर ग्रेड 11 फॉर दैट मैटर, द फादर हैड 23 पेयर्स ऑफ, है ना, पेयर्स ऑफ डीएनए, एंड द मदर ऑल्सो हैज 23 पेयर्स ऑफ डीएनए. सो 23 from the father, 23 from the mother, and the child again has 23 pairs of the DNA. So this is what exactly happens. So आपका DNA जो है वो डबल होता है. अब ये डबल कैसे होता है? वो डबल होता है by the process of your replication. ठीक है, so DNA जो है वो replicate होकर के एक और कॉपी बना देता है, and this part is what we are going to study in today's class. Apart from this, in this slide you can see something called as reverse transcription. What is reverse transcription? Transcription मैंने क्या बोला था? DNA से RNA जब बनता है तो हम उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जब हम RNA से DNA बना सकते हैं. अब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो RNA से DNA बनाएगा? दैट इज वायरस. ओके, सो वायरस ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे आपको दिखेगा कि उस लाइक फॉर एग्जाम्पल योर कोविड वायरस, है ना, कोविड वायरस फॉर दैट मैटर, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है. सो कोविड वायरस में क्या होता है? प्रोटीन तो बनाना है, लेकिन प्रोटीन डायरेक्टली RNA से नहीं बन सकता. प्रोटीन कैसे बनेगा? पहले DNA, फिर RNA, फिर प्रोटीन. ये हमारा सेंट्रल डॉगमा है. दिस कैन नॉट बी चेंज्ड.
ओके, सो वायरस की बॉडी में अगर आरएनए है तो क्या होता है, आरएनए जो है वो पहले कन्वर्ट होगा आपका डीएनए में बाय यूजिंग अ वेरी स्पेशल एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, टेज ASE, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर हम किसी भी एंजाइम्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो ASE अगर हम पीछे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक एंजाइम है। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि आपके वायरस के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। एंड उसके बाद अगेन द प्रोसेस इज सेम, वही डीएनए आपका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे वायरल प्रोटीन्स मिलेंगे। ठीक है, सो सेंट्रल डॉगमा कभी भी चेंज नहीं हो सकता, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन, यही हमारा सेंट्रल डॉगमा है। एंड ओनली इन द केसेस ऑफ वायरसेस द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, वेयरइन द आरएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीएनए फर्स्ट by a special process called as reverse transcription, by a very special enzyme called as reverse transcriptase enzyme, और इस एंजाइम की वजह से हमारा डीएनए, वायरल डीएनए पहले बनता है, जो कि अगेन आपका वायरल आरएनए एंड देन वायरल प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, सो हैविंग अंडरस्टूड द सेंट्रल डॉगमा, नाउ वील मूव फर्दर कि हाउ दिस कॉपी ऑफ डीएनए हैपेंस, डीएनए आपका रेप्लिकेट कैसे होता है, वो एक और कॉपी कैसे बनाता है। सो ये जो रेप्लिकेशन होता है, ये पेरेंटल डीएनए है ना, मैंने आपको बोला फादर का जो एक आपका डीएनए है वो अपनी एक कॉपी बना देगा और वहां से हाफ कॉपी जो है वो आपके पास चली जाती है। सिमिलरली मदर का जो डीएनए है वो भी डबल्ड हो जाता है, वहां से आपके पास हाफ कॉपी आ जाती है। ठीक है, सो ये पेरेंटल डीएनए क्या हो गया, फादर का डीएनए जो था वो पेरेंटल है, मदर का डीएनए जो है वो पेरेंटल है, उसने एक और कॉपी बनाई और दोनों से आपको आधी आधी कॉपी मिल गई। ओके, नाउ ये इस हम प्रोसेस को जो पेरेंटल डीएनए ने अपनी एक और कॉपी बनाई, कैसे बनाई, अगर आप इस ब्लू स्ट्रैंड को देखेंगे, जस्ट हैव योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस पार्ट। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो ये डबल हेलिक्स डीएनए, क्या देख रहे हो आप, ये डबल हेलिक्स डीएनए जो इसने पहले खुद को हाफ हाफ में कन्वर्ट किया है ना, आधा ब्लू पार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो और आधा ब्लू पार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब क्या होता है, based on what are the codes on this blue, you are seeing a new red one coming through, है ना, एक नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो हमारा रेड वन जो है वो नया डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है। दैट मीन्स क्या, जो हमारा जो नया कॉपी बना डीएनए का, उसमें एक पार्ट जो है या फिर एक स्ट्रैंड जो है वो एक पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, दोनों में ही आपको ब्लू कलर दिख रहे हैं। सो दोनों में हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड है और जो नया स्ट्रैंड बना है वो हमारा रेड वाला है। कैन यू अंडरस्टैंड? सो पेरेंटल डीएनए कभी भी आपके न्यू डीएनए में एक पार्ट जो है वो आपका पेरेंटल डीएनए रहेगा, वन पेरेंटल डीएनए एंड वन न्यू स्ट्रैंड। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, सेमी इज हाफ, so half of your DNA is conserved. Yeah, it suggests that parental DNA acts as a template. Parental DNA क्या है, वो एक टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट को देख करके हम नई चीज बनाते हैं। ठीक है, इट्स लाइक आपके पास जब आप प्रिंट आउट के लिए जाते हो, जेरोक्स के लिए जाते हो, आपके पास एक कॉपी रहती है और आप बोलते हो ठीक है इसके बेसिस पे आप एक और एक कॉपी बना दो, है ना। सो जो हमारा पेरेंटल डीएनए हम उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट वी आर गेटिंग न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, अ स्टैंड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है एटीजीसी, एटीजीसी क्या था, अगर हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड में अगर ए होगा तो हमारे न्यू स्ट्रैंड में क्या होगा, टी होगा, बिकॉज ए ऑलवेज बाइंड्स विद टी। अगर मेरे टेम्पलेट स्ट्रैंड में से सी होगा तो मेरे न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में जी होगा। सो बेस्ड ऑन द कोड्स रिटन ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड आई एम गोइंग टू गेट द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। हमारा आधा जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है और आधा जो है वो नया स्ट्रैंड है। और इसको किसने प्रूव किया, इनके बारे में हाइपोथेसिस जो थी या फिर जो बोला था वो वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था, लेकिन इसको प्रूफ किया है मिचेल्सन एंड स्टार्क ने बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड एज मिचेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ लेंगे। अगेन ये एक्सपेरिमेंट आपका 3 मार्कर में आ सकता है, 2 मार्कर में, 1 मार्कर में, 5 मार्कर में। सो जस्ट go through very clearly. Okay, so Michelson and Stark ने क्या किया, इन्होंने E. coli को लिया। E. coli is what, your Escherichia coli which is a bacteria, उन्होंने लिया और उन्होंने उनको 2 अलग अलग मीडिया पे ग्रो किया। कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया क्या है, मतलब उसका खाना,
ठीक है। सो दो अलग अलग कल्चर मीडिया पे उसने ग्रो किया, एक N15 और एक N14। N क्या है? N है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। सो नाइट्रोजन के उन्होंने दो आइसोटोप्स लिए हैं, एक N15 लिया है और एक N14 लिया है, ठीक है। अब नाइट्रोजन हमारा कहाँ रहता है? नाइट्रोजन इज देयर इन योर डीएनए, यू ऑल नो दैट। सो ये जो डीएनए बना ये N15 के बेसिस पे बनेगा। सो इस डीएनए में पूरा का पूरा N15 रेडियो आइसोटोप्स है, वेयर एज ये जो ऑरेंज वाला जो है इसमें हमारा पूरा का पूरा N14 नाइट्रोजन है, ठीक है। सो N15 हो गया एक और N14 हो गया एक, ये दो आपके डीएनए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं अगर मैं इकोलाई को इस मीडिया पे ग्रो करूं और इस मीडिया पे ग्रो करूं, ठीक है। सो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इन्होंने अपने इकोलाइज को ग्रो किया N15 पे। स्टेप नंबर 1 क्या किया, इन्होंने अपने इकोलाइज को ग्रो किया N15 पे और फिर उनका डीएनए उन्होंने क्या किया, डीएनए निकाला और डीएनए को उन्होंने उसका डेंसिटी ग्रेडियंट चेक किया, ठीक है। डीएनए को सेल से अलग करके जब उसकी डेंसिटी उन्होंने ली है तो उनको ये बैंड मिला। अब ये बैंड क्या बोलता है, ये बैंड ये बोलता है कि 100% यहाँ पे क्या है, N15 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, N15 है, तो 100% उनके पास N15 का बैंड आ गया और इसकी एक डेंसिटी थी, दिस वाज मोर हेवियर, तो उनको यहाँ पर N15 का डेंसिटी का मिल गया। चलो वेरी गुड। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और मीडियम प्रिपेयर किया N14 का और अब उन्होंने जिस इकोलाई को वो N15 में ग्रो कर रहे थे उसी इकोलाई को उन्होंने डाल दिया N14 में और ग्रो किया, ठीक है। सो N15 से उन्होंने कुछ बैक्टीरिया जो है वो लेकर के N14 में डाल दिया, ओके। अब N14 में रुके वो कितनी देर रुके, वो आधा घंटा रुके। एक्चुअली एक डीएनए को डबल होने के लिए आपको 20 मिनट्स की जरूरत होती है, ठीक है। वो आधा घंटा रुके और उसके बाद उन्होंने जब उस बैक्टीरिया का डीएनए निकाला और उसको चेक किया तो उनको इससे लाइटर ये जो डेंसिटी है यहाँ पर अगर होगा तो N15 होगा, लेकिन उनको यहाँ पर नहीं मिला, इस बार उनको ऊपर मिला, ठीक है, इससे लाइटर मिला। और उन्होंने ये देखा कि उसमें ये जो नया डीएनए था उसमें N14 भी था और N15 भी था, दोनों थे, जबकि हमारे पहले वाले में ओनली N15 था। तो ये N14 क्यों आया, क्योंकि हमने नए मीडियम में डाला जो कि N14 का था, ठीक है, हमें वो आ गया। हमारा N15 क्यों आया, क्योंकि वो पेरेंटल डीएनए था। तो ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने नए में डाला तो डीएनए पेरेंटल एक जगह हो गया और नया डीएनए, ऐसा नहीं हुआ। पेरेंटल जो है वो डिवाइड हुआ और आधा जो है वो एक में चला गया और आधा जो है वो दूसरे में चला गया। इफ आई कैन एक्सप्लेन यू हियर very clearly, before that let me just read this for you. So N15 जब उन्होंने पहली बार फर्स्ट जो उन्होंने कल्चर जब N15 पे ग्रो किया तो N15 जो था वो दोनों के दोनों स्ट्रैंड में चला गया, तो आपका डीएनए जो है वो हैवी हो गया और उन्हें यहाँ पर डीएनए का डेंसिटी जो था वो यहाँ पे उनको मिल गई। चलो वेरी गुड। फिर उन्होंने क्या किया, N14 सॉल्ट में उसको ग्रो किया। जब N14 सॉल्ट में ग्रो किया तो फिर क्या हुआ, वो लाइट हो गया। और ये जो डेंसिटी है उसको हम कैसे करते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जब आपके टेस्ट ट्यूब्स में डाल के आप बहुत जोर से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, है ना, फिजिक्स में आप सबको पता होगा। सो सेंट्रीफ्यूगेशन जब उन्होंने किया तो उनको एक डेंसिटी ग्रेडियंट मिला जिसे हम CaCl सीशियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। सो ये आपको मिल गया एंड ही गॉट द 2 सेपरेट स्ट्रैंड। नाउ इसको मैं क्लियरली यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। सो जेनरेशन जीरो क्या है, जब उन्होंने ग्रो किया आपका N15 पे, N15 पे जब उन्होंने ग्रो किया तो उन्हें क्या मिला, उन्हें क्लियर एक डेंसिटी मिली जो कि एक पर्टिकुलर लेवल पर थी और वो N15 को उसने क्लियरली रिमार्क कर दिया कि ठीक है N15 में हमें ये डेंसिटी मिल गई। जब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या है, अभी हमारा डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो गया। जब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन किया तब उन्हें डेंसिटी थोड़ा ऊपर मिली, थोड़ा ऊपर मतलब क्या हुआ, वो लाइट हो गया। लाइट क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये जो पेरेंटल डीएनए है वो यहाँ आ गया आपका, ये जो पेरेंटल डीएनए है वो यहाँ आ गया। तो हमारा जो पेरेंटल डीएनए था वो हाफ डिवाइड हो गया और अब हमारा यहाँ पे ये न्यू डीएनए बना जो कि
N14 के साथ बना। क्योंकि ये N14 के साथ बना, ये थोड़ा लाइट था, तो हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइटर, थोड़ा सा ऊपर हमें एक डेंसिटी ग्रेडियंट मिल गया। अभी क्या है, जनरेशन 2। जनरेशन 2 क्या है, फिर से हमने डीएनए को रेप्लिकेट होने दिया। इस बार जब हमने डीएनए को रेप्लिकेट होने दिया तो जस्ट लुक हियर, इट्स वेरी डिफरेंट। यहाँ पर हमें सेम डेंसिटी ग्रेडियंट पे, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में था, सेम डेंसिटी ग्रेडियंट पे हमें एक मिला, ओके। और इसके ऊपर भी हमें मिला एक और डेंसिटी ग्रेडियंट मिला जो कि और भी लाइट था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा जनरेशन 1 अगेन ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे ये रेड देखो यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो रेड है वो भी डिवाइड होकर के यहाँ पर आ गया, और इन्होंने फिर से अपना नया N14, सो दिस इज योर N14, है ना। ऑरेंज हमारा N14, नया N14 बनाया, यहाँ पर भी नया N14 बनाया, और ये जो N14 वाला था वो यहाँ आ गया, और ये N14 वाला यहाँ आ गया, है ना। अब ये तो पेरेंटल हो गए, तो ये भी डिवाइड होंगे, और इन्होंने नया जो बनाया वो भी N14। सो अगर आप ये वाला देखोगे, यहाँ पे दोनों ही N14 है, यहाँ पे दोनों ही N14 है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा N15 है और थोड़ा सा N14 है, जिसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। So you got hybrid strand of 14 and 15 and you got pure strands of your 14s, okay? तो ये जो pure strands of 14 है, इन्होंने यहाँ पर आपका एक density gradient बनाया, और ये जो हाइब्रिड स्ट्रैंड थे उन्होंने सेम लेवल, जो हमारा पहले जनरेशन, क्योंकि वो भी हाइब्रिड था, तो सेम लेवल पे उन्होंने बना लिया, ठीक है। अब अगर आप जनरेशन 3 देखो, सो जनरेशन 3 में क्या हुआ, अगेन ये जो हमारा रेड है वो यहाँ पे आ गया, ओके। ये जो हमारा रेड है वो यहाँ पे आ गया, नया उसने क्या बनाया, नया उसने 14 बनाया। सिमिलरली ये दोनों भी डिवाइड हो गए, ओके, एंड इन्होंने भी अपना 14 14 फिर से नया नया बना लिया। सो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि एवरी टाइम when you're keeping this in 14 for the rest of the generation, है ना, आगे आप 14 में ही जब ग्रो कर रहे हो, तो आप ये देख रहे हो 15 कहीं गया नहीं है, 15 वहीं पर है, क्योंकि ये तो पेरेंटल डीएनए था, ये कहीं जाएगा नहीं, लेकिन जो भी नया ये बनाएगा वो 14, और क्योंकि हमारे 14 में अब ग्रो रहे, इसलिए हमारे पास अब ज्यादा से ज्यादा N14 है। Could you all understand? So again if you see, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पतला हो रहा है, this is becoming thinner and thinner, but it is not going anywhere। हमारा हाइब्रिड भी उसी लेवल पे चल रहा है, एंड हमारा जो N14 है दैट इज बिकमिंग थिकर एंड थिकर। सो पहले 50% था, अभी 75% हो गया, है ना। यहाँ पे 50% था, यहाँ पे 25% हो गया, उसके बाद 12% ही रह गया। तो ये क्या हो रहा है, अगेन जनरेशन 4 में अगर आप देखोगे हाइब्रिड है, अगेन 2 आपके हाइब्रिड हैं, और बाकी जो भी नए आपके बने हैं वो सारे के सारे आपके N14s हैं, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर हियर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेशन। सेमी मीन्स हाफ, सो हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज देयर। कभी भी ये मत सोचना कि ये दोनों हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे और जो बनेगा वो नया स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों को अलग होना ही है। दैट इज व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव method, okay। So if you can if you want to write it in your paper, how you're going to write, so you'll say that they took the E. coli cells from N15 medium और उसको हमने ट्रांसफर किया N14 मीडियम पे आफ्टर 1 जनरेशन, दैट इज 20 मिनट्स। मैंने आपको बोला था डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ E. coli टेक्स 20 मिनट्स। सो 20 मिनट में अगर आपने देखा तो आपका ये जो नया जो डीएनए आपका बना वो कैसे बना, दैट वॉज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब N15 का उसमें एक स्ट्रैंड था और दूसरा स्ट्रैंड जो था वो N14 का था, ठीक है। सो इट वॉज अ हाइब्रिड। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाते गए उनको ज्यादा से ज्यादा N14 ही मिलते गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे N14, सो दे गॉट अ क्लियर न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ N14 एंड दे ऑल्सो वेर हैविंग द हाइब्रिड स्ट्रैंड। ये भी आपका हाइब्रिड है आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, और ये आप देखोगे तो ये प्योरली N15 था। और अगर आप देखो तो इसका डेंसिटी कहाँ है, इसकी डेंसिटी काफी नीचे है। हाइब्रिड की डेंसिटी थोड़ी ऊपर है और N14 की तो डेंसिटी काफी ऊपर है ना। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर Michelson and Stark experiment proved, that the DNA replication is semi-conservative in its nature. It's a semi-conservative replication. I hope this part is very clear. Again, later on, Tyler and colleagues
what they did, they studied Vicia faba, which is again a bean plant, and this Vicia faba में उन्होंने radioactive thymidine का use किया ना, thymidine T है ना, thymidine always pairs up with your cytidine, so your cytidine and thymine goes together. So what they did, they made the thymidine as radioactive, और उसके distribution के बेसिस पे उन्होंने ये समझा कि जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है उसमें आधा आपका पेरेंटल, अगेन जस्ट लुक यहाँ पे उन्होंने डॉटेड दिखाया है पेरेंटल स्ट्रैंड को। फर्स्ट जनरेशन में आप क्या देख रहे हो कि आधा आपका पेरेंटल स्ट्रैंड यहाँ पे है, सो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यहाँ पे था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यहाँ पे था, लेकिन जो नए जो दो बने उनमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन नहीं था। सिमिलरली जब उन्होंने जनरेशन 2 देखा तो जनरेशन 2 में भी हाइब्रिड उनको रह गया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के साथ, लेकिन जो नए जो दो बने उनमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन नहीं था। ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन दिस दे सपोर्टेड कि जो मिसेल्सन एंड स्टार्क का एक्सपेरिमेंट था दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन, एंड नाउ द वर्ल्ड वाज वेरी क्लियर अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ओके, सो विद दिस नॉलेज ऑफ सेमी कंजर्वेशन लेट अस स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन इन डिटेल। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? सी देर आर, दिस इज अगेन अ 5 मार्क क्वेश्चन, अगर आप वो आपको पूरा का पूरा पूछे तो, नहीं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, 2 मार्क में, 3 मार्क में, इट कैन कम द वे इट इज़ यू नो, या फिर आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पर भी आपको पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको सारे एंजाइम्स पता होना चाहिए, दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट थिंग इज आपका डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक दिस। सो इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ना होता क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले तो अनवाइंड होना है। अनवाइंड मतलब क्या है? ओपन अप होना है। अगर वो ऐसे हेलिक्स में रहेगा, है ना, जब वो एक दूसरे के ऊपर यू नो इस तरह से रहेगा तो enzymes will not be able to read what are the codes written on your DNA, so वो clarity नहीं रहेगी। so यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, 2 strands unwind, और ये जब ये 2 strands जब unwind होते हैं तब एक replication fork बनता है। सी दिस इज व्हाट इज रेप्लिकेशन फोक, अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमें जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, नाउ रेप्लिकेशन फोक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ पर रेप्लिकेशन फोक होगा? ऐसे ही नहीं कि डीएनए में कहीं पर भी, ठीक है हमारे पास एक डबल हेलिकल डीएनए है तो कहीं पर भी रेप्लिकेशन फोक हो जाएगा, नहीं। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओआरआई साइट या फिर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये जो आप ओ देख रहे हो ना, दिस स्टैंड्स फॉर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड जो आप टी देख रहे हो दैट इज द टर्मिनेशन, वहां पे खत्म हो जाएगा। सो डीएनए में आपका जहां जहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, आपका रेप्लिकेशन फोक वहीं पे बन सकता है, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एट वन ओरिजिन, एंड दैट ओरिजिन इज वेयर your origin of replication is going to happen, where your enzyme polymerase, which enzyme? The polymerase enzyme can come and sit. So that's the starting point. The origin of replication is the starting point for the enzyme polymerase. Okay, polymerase ऐसे ही कहीं भी जाकर के नहीं बैठ सकता, ठीक है। अभी क्योंकि डीएनए हमारा मैंने आपको बताया था मेरे फर्स्ट इसमें वेरी क्लियरली 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो उसके 2 अलग अलग पोलैरिटी होते हैं। ये जो रेप्लिकेशन है ये बाई डायरेक्शनल होता है। सो ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही चेन बनेगी, दोनों चेन का रेप्लिकेशन जो है वो साथ साथ होगा, ठीक है, इसलिए उसको हम बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। सो कहाँ स्टार्ट होगा आपका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा, टर्मिनल साइट तक जाएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो डीएनए जो है वो बनेगा, टर्मिनेशन में आकर के वो रुक जाएगा, अगेन ओरिजिन से अगेन फिर से हमारा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डीएनए है वो बनता जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, रेप्लिकेशन फोक। द फर्स्ट स्टेप इज रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक कहाँ होगा, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहां पे। कैसे होगा रेप्लिकेशन फोक, मतलब कौन अनवाइंड करता है, तो ये हमारा है एंजाइम नंबर 1 हेलिकेज।
हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? हेलिकेज एंजाइम हमारे डीएनए को अनवाइंड करता है, अनवाइंड यानी खोलता है। ठीक है, हमारा डीएनए जो ऐसे कॉइल्ड है ना, ये मैंने आपको बताया था कि कॉइलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि इतना बड़ा जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है वो सुपर कॉइल्ड होकर के आपके न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, तो जहां पर भी आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहां पर आपका डीएनए जो है वो अनवाइंड होगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हेलिकेज एंजाइम विच इज गोइंग टू अनवाइंड योर डीएनए। और क्योंकि ये अनवाइंड हो गया तो अब ये ओपन अप हो गया। ओपन अप हो गया तो क्या हुआ, ये देखो, ये है हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड, यहाँ पे ये है हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड, है ना, पेरेंटल डीएनए हमारा खुल गया। अब ये जो पेरेंटल डीएनए हमारा खुल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप ऐसे सोचो कि मेरा एक वीडियो भी रहेगा यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर, वेयर आई कैन शो यू द थिंग्स। एंड आप सोचो कि दो रस्सियाँ हैं जिसको आपने ना एक दूसरे पे ऐसे कॉइल किया। अब आप अगर उसको खोलना शुरू करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ हमारा टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, टाइट होती जाएंगी वो रस्सियाँ, यहाँ पे खुलती जाएंगी और यहाँ पे इस तरफ टाइट होती जाएंगी। तो यहाँ पे आपके अगेन कुछ इम्पॉर्टेंट व्हाट डू आई से एंजाइम्स जो है वो वर्क करते हैं, जो कि डीएनए में टेंशन नहीं लेने देते, एंड दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज योर टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, सो यहाँ पे आपके टोपोआइसोमरेज एंजाइम, गाइरेज एंजाइम, सो बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हैं, बट हम अपना अटेंशन इस तरफ रखेंगे, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एट योर रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 1 क्या था आपका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के वहां पे हमारा रेप्लिकेशन फोर्क बनना है। उसके लिए क्या हुआ, स्टेप नंबर 2 आपका हेलिकेज एंजाइम आया, उसने अनवाइंड कर दिया और आपको रेप्लिकेशन फोर्क मिल गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया। अभी स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके बेसिस पे हमारे नए डीएनए बनेंगे, है ना, जो भी कोड हमारे पेरेंटल डीएनए पे लिखा है, यू कैन सी दिस ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, सो दीज आर द कोड्स, यू कैन सी हियर एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इस कोड के बेसिस पे हमारा नया डीएनए बनना है। ओके, सो ये जो नया डीएनए ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा हमारा पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो ला करके ये जो 4 सबस्ट्रेट हैं, 4 सबस्ट्रेट कहाँ हैं, ये न्यूक्लियस में ही घूम रहे हैं। कौन, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी, दैट इज एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिडीन। तो ये जो घूम रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इनको पकड़ के बेस्ड ऑन द कोड्स रिटन ऑन द पेरेंटल स्ट्रैंड ये नया स्ट्रैंड जो है ये बनेगा। ठीक है, तो ये करता कौन है, ये हमारा करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम जो है, दिस इज द एंजाइम विच मेक्स द अदर कॉपी ऑफ योर डीएनए। ठीक है, अभी ये अपने आप से काम नहीं कर सकता, है ना, ये तो मैकेनिक हुआ। आप ये सोचो कि आपको अगर एक दीवार बनानी है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एक दीवार है और इसके 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 एकदम बगल में आपको एक दीवार बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, तो आप क्या करोगे, आप एक आप ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दोगे, वेरी गुड, बट हमें एक इनिशियल ब्रिक चाहिए, है ना, हमें एक फाउंडेशन चाहिए, उसके ऊपर ही हम रखना शुरू करेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो फाउंडेशन है, ये कौन देता है, ये हमें चाहिए एक स्मॉल आरएनए प्राइमर। तो एक छोटा सा आरएनए प्राइमर जो है सबसे पहले वो अटैच होता है, एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट ब्रिक। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर कैसे अटैच होता है, ये कौन सिंथेसाइज करता है, ये हमारा प्राइमेज एंजाइम सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका एंजाइम नंबर 3 आ गया, है ना। सो मैंने हेलिकेज के बारे में बात की, मैंने पॉलीमरेज के बारे में बात की, अभी मैं प्राइमेज के बारे में बात कर रही हूँ। सो पॉलीमरेज अकेले नहीं काम कर सकता, पॉलीमरेज वहां पर काम करेगा जहां पे आपका आरएनए प्राइमर जो है वो आकर के एक छोटा सा प्राइमर स्ट्रैंड नहीं बना देगा। ठीक है, तो एक जब छोटा सा स्ट्रैंड बन गया, पहली आपकी ब्रिक लग गई, तो इसके ऊपर आरएनए पॉलीमर को क्या करना है, बस ब्रिक लगाते जाना है और आपका जो दीवार है वो बन जाएगा। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम your DNA polymerase, many nucleotides join with one another to the primer strand. Please understand this. Primer strand के ऊपर आपका polymerase जो है वो नए ये जो bricks है वो लगाता रहता है, and that is how you get your
polynucleotide chain, that is your new strand, that is your the new constructed strand from the parental strand. तो हमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हमारा जो रेप्लिकेशन फोक बने, है ना, ये हमारा था स्टेप नंबर 1. रेप्लिकेशन फोक कहाँ पर बनेगा, जहाँ पे आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन फोक बनेगा. चलो वेरी गुड. अभी रेप्लिकेशन फोक भी है. रेप्लिकेशन फोक बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, सो हमारा जो हेलिकेज एंजाइम है वो आकर के ओपन अप करेगा. ठीक है, सो यू कैन सी हियर. सो सेकेंड जो है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, आई जस्ट राइट इट हियर. सो सेकेंड एंजाइम जो है वो हमारा हेलिकेज एंजाइम है जो कि ओपन अप कर देगा हमारे दोनों स्ट्रैंड्स को. एक बार जब हेलिकेज एंजाइम आकर के ओपन अप करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिख रहा है, तब कौन आएगा, तब हमारा जो थर्ड वन है जो कि यू कैन सी हियर द प्राइमेज एंजाइम. सो थर्ड वन इज योर प्राइमेज एंजाइम जो कि आकर के एक छोटा सा प्राइमर लगाएगा. आपको दिख रहा है यहाँ पे जो पिंक कलर है ना. सो ये जो प्राइमेज एंजाइम है, ये रेड कलर जो आप देख रहे हो, ये हमारा फर्स्ट ब्रिक हो गया. तो ये जो है उसने एक आरएनए प्राइमर लगा दिया. एक बार जब प्राइमर लगा दिया तब हमारा जो पॉलीमरेज है, सो दिस इज द फोर्थ स्टेप जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है. इट विल कम, यू कैन सी हियर डीएनए पॉलीमरेज 3. ओके, सो देर आर अगेन मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज 1 2 3. डोंट वरी अबाउट दैट, एक के बाद एक हम पढ़ेंगे. अभी आपको पॉलीमरेज 3 भी याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट स्पीक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. आप अगर इतना पेपर में लिखोगे दैट्स मोर देन इनफ. तो वो आकर के क्या करेगा, वो यू कैन सी दिस ब्लू स्ट्रैंड, तो वो हमारा नया स्ट्रैंड जो है वो बनाते जाएगा. लेकिन दिस इज नॉट दैट सिंपल. व्हाई इज इट नॉट दैट सिंपल, क्योंकि हमारा ये जो पॉलीमरेज है इट हैज अ लिमिटेशन. इसको एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इट ऑलवेज वर्क्स इन योर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन में काम करता है ये, 5 टू 3 प्राइम. कभी भी याद रखो, पॉलीमरेज वर्ड अगर मैं यूज कर रही हूं तो पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही नया जो स्ट्रैंड है वो बनाएगा. दैट मीन्स मेरा पुराना स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरा पेरेंटल स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में है, तब मेरा जो नया स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनेगा. अभी डीएनए में हमें क्या मालूम है कि एक स्ट्रैंड तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में रहता है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड वो तो 5 टू 3 के डायरेक्शन में रहता है. ठीक है, अगर ये 5 टू 3 के डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या लिमिटेशन आ गई मेरी आरएनए पॉलीमरेज की, वो यहाँ पे इस तरीके से नहीं बना सकता. ठीक है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में तो बना ही नहीं सकता. हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि उसको ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में रहना है ना. तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में कैसे बनाएगा, कंटिन्यूअस नहीं बना सकता. अब वो छोटा छोटा, सो यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर जो है वो आएगा. ठीक है, हमारा पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में बनाएगा, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक छोटा सा बनाएगा. अगेन हमारा प्राइमर जो है वो यहाँ पे लगेगा. अगेन हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनाएगा. अगेन हमारा एक प्राइमर यहाँ पे लगेगा. अगेन वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में लगाएगा. तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक तरफ हमारे पास एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड आएगी. Wherever the parental DNA is having 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वहां पे हमारे पास एक कंटिन्यूअस नई डीएनए जो बनेगी, नई डीएनए स्ट्रैंड जो बनेगी वो कंटिन्यूअस बनेगी. बस एक ही बार हमारा प्राइमर लगना है एंड डीएनए पॉलीमरेज विल फटाफट मेक इट इनटू 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ठीक है, एक लंबा सा हमें मिल जाएगा. वेरी नाइस. लेकिन दूसरी तरफ में क्या होगा, यहाँ पे हमें लंबा सा नहीं मिल सकता क्योंकि हमारा पॉलीमरेज टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दैट मीन्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर के काम करना है. तो वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है एंड बिकॉज ऑफ दीज छोटे छोटे स्टेप्स यू गेट द फ्रैगमेंट्स. आपको एक लॉन्ग नया डीएनए स्ट्रैंड नहीं मिलता है, आपको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट. ठीक है, सो हमारा जो एक डीएनए है वो हमें देगा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड,
वेयरएज हमारा जो दूसरा पेरेंटल डीएनए है वो हमें देगा नॉन कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स, या फिर दो जो अलग अलग नाम है, जो कंटिन्यूअस है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो नॉन कंटिन्यूअस है हम उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो रुक रुक करके है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो यू कैन सी द डायरेक्शन है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका एक लैगिंग स्ट्रैंड, सेकेंड लैगिंग स्ट्रैंड, थर्ड लैगिंग स्ट्रैंड, उस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, सो ये जो सारे जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स है या फिर लैगिंग स्ट्रैंड्स है, इन्हीं को हम नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। सो वन साइड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड मिलेगा जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, लेकिन जो अदर साइड है वहां पे हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में छोटे छोटे स्ट्रैंड्स मिलेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्शन उल्टा है, उसका डीएनए का भी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में है, इसलिए हमें वो continuous strand नहीं दे सकता, because the limitation of our RNA DNA polymerase is that it can only work in the direction of 5 prime to 3 prime, ये उसकी limitation है, we can't help it। ठीक है, तो छोटे छोटे fragments देता है। अब क्या हुआ, अब ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है, अब हमारा काम क्या है, ये जो सारे जो प्राइमर है ना ये निकल जाते हैं, सो दीज प्राइमर्स आर रिमूव्ड, एंड ये जो गैप है इसको फिल करता है अगेन आपका डीएनए पॉलीमरेज, जो अब उसका दीवार बन चुका है ना, अब उसको ये फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, सो वो इस गैप को फिल कर देगा बाय यूजिंग योर डीएटीपीज, डीटीपीज जो भी है आपका बेस्ड ऑन द कोड्स दैट इज रिटन हियर, वो इसको कर देगा। एंड ये जो गैप्स है इसको फिल कौन करेगा, इसको फिल करेगा आपका लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा आपका रेप्लिकेशन फोक, है ना, रेप्लिकेशन फोक बनना है। सो रेप्लिकेशन फोक जो है वो कहाँ बनता है, वो बनता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के वहाँ पे। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, सेकेंड हमने पढ़ा कि जो हेलिकेज एंजाइम है वो आएगा और वो अनवाइंड करके आपका रेप्लिकेशन फोक बनाएगा, तो अनवाइंडिंग कौन करता है, हेलिकेज एंजाइम। थर्ड हमने क्या पढ़ा, थर्ड हमें चाहिए आपका प्राइमेज, जो कि क्या करेगा, जो कि जा करके एक छोटा सा प्राइमर बनाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के वहां पे। फोर्थ कौन आएगा, फोर्थ आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल कम, एंड वो क्या करेगा, वो फटाफट फटाफट इस प्राइमेज के ऊपर अपना काम करना शुरू करेगा, दैट इज इट विल मेक लॉन्ग स्ट्रैंड्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि एक मुझे मिलेगा लीडिंग स्ट्रैंड और एक मुझे मिलेगा लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स रहेंगे जिसे हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। सो लीडिंग स्ट्रैंड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन छोटा छोटा रहेगा। एंड देन ये जो गैप्स हैं इनको फिल करने के लिए हमारा फिफ्थ एंजाइम जो है, दैट इज योर द ligase enzyme will come and it will fill up the gaps in between. So इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डीएनए जो है वो नया स्ट्रैंड बना लेता है। लेकिन ऐसे केसेस हैं या फिर ऐसे चांसेस हैं कि ये जो रीडिंग है वो प्रॉपरली नहीं हुई। सपोज ए है तो ए के इस तरफ मुझे टी ही लगाना है ना, सी या फिर जी नहीं आ सकता। व्हाट इफ बाय मिस्टेक सी आ गया, so then a proofreading has to happen. So who does this proofreading? Again आपका जो DNA polymerase है वो आकर के एक प्रूफ रीडिंग करेगा कि yes whether all the bases are properly paired up or not। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये जो है वो अपना प्रूफ रीडिंग कर देगा, and after the proofreading your DNA is completely done. Okay, so I hope you people are very clear with what are the steps. Again I'll repeat myself. See, you can see here this is something like this, your DNA double helix will be like this। मैंने आपको बोला जहां पर भी origin of replication है वहां पे हमारा replication fork बनना है। सो कौन आ जाएगा, हमारा हेलिकेज एंजाइम आ जाएगा, इसको अनवाइंड कर देगा। द मोमेंट इट विल अनवाइंड, यहाँ पे हमारा टेंशन क्रिएट होगा और इस टेंशन को रिलीज कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज एंजाइम आकर के इस टेंशन को रिलीज करेगा। आप मेरा वीडियो देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये टेंशन कैसे रिलीज करता है। सो टोपोआइसोमरेज एंजाइम विल कम एंड इट विल अनवाइंड इट। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है गाइरेज, जो मैंने आपको बोला था। गाइरेज क्या करता है, गाइरेज फिर से डीएनए को ना वाइंड अप नहीं होने देता। सी कभी भी वाइंड और अनवाइंड क्या है, डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे ना, जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, वो टूटना है। तो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है वो तो कभी भी बन सकते हैं, इट्स लाइक अ मैग्नेट, है ना। सो
उसको हमारा ये जो गाइरेज है वो उसको रोक करके रखता है, वो अलाउ नहीं करता है। रेप्लिकेशन फोक में अलाउ नहीं करेगा कि भैया तुम दोनों आकर के मतलब वापस से यू पीपल मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो वो अलाउ नहीं करता है। सो हमारा हेलिकेज हो गया, टोपो आइसोमरेज ने टेंशन रोक दी, गाइरेज ने क्या किया, उसने अनवाइंडिंग रोक कर, उसने वाइंडिंग अप रोक करके रखा है। ठीक है, अब कौन आएगा, अब हमारा प्राइमेज एंजाइम आ जाएगा। प्राइमेज एंजाइम आकर के एक प्राइमर बना देगा, आरएनए प्राइमर, दैट इज द इनिशिएशन और द फर्स्ट ब्रिक आई वुड से। उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद हमारा पॉलीमरेज एंजाइम आ गया। पॉलीमरेज एंजाइम आकर के उसके ऊपर बेस्ड ऑन वॉट एवर इज द कोड वो हमारा जो चेन है वो बनाने लगेगा। लेकिन दोनों चेन जो है वो अलग अलग बनेगी, एक लीडिंग बनेगी, एक लैगिंग बनेगी, और जो लैगिंग है उसको फिर हमारा लाइगेज एंजाइम आकर के ज्वाइन कर देगा। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा आपका हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, लुक एट दिस स्लाइड। सो ई कोलाई कंप्लीट्स डीएनए रेप्लिकेशन, मैंने आपको बोला था 20 मिनट्स में, वेरी प्रिसाइज 18 मिनट्स में वो खत्म कर देता है। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के रफ्तार से इट टेक्स इट। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी में इट टेक्स आई वुड से वन साइकिल, वन सेल साइकिल अगर आपको याद होगा तो इट टेक्स 24 आवर्स। okay, it takes 24 hours for the cell cycle and ये रहा आपका सेल साइकिल, ये आपने पढ़ा हुआ है ग्रेड 11 में। आपने क्या पढ़ा था, G1 फेज है जहाँ पे आपके सेल और सेल ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनल्स का ग्रोथ होता है, और फिर ये आपका एस फेज आता है जहाँ पे आपका डीएनए सिंथेसिस, जहाँ पे आपका डीएनए डबल्ड होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, DNA gets doubled but chromosome number remains same. That was a very very important point. Always insist कि जब आप grade 11 में हो तो इस चीज को समझो कि DNA तो डबल हो गया लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा, वो उतना ही है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका G2 फेज होता है जिसमें आपका सेल और सेल ऑर्गेनल जो है और जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो और ज़्यादा बन रहे हैं। एंड फिर ये होता है M फेज। नाउ M फेज इज व्हाट, M फेज इज वेयर योर metaphase, anaphase, telophase, prophase, all these things happen. That is your cell division exactly happens. So हमारा DNA synthesis कहाँ हुआ, हमारा DNA synthesis जो है वो यहाँ पर हुआ, एंड ये पूरा का पूरा होने में हमारा 24 hours लगता है। ठीक है, so it's not that easy in the eukaryotic cell. Okay, so please remember that where is the DNA duplication happening, it only happens in the S phase and not anywhere else. And अगर हमारा डीएनए ड्यूप्लीकेशन हो गया लेकिन सेल डिवीजन नहीं हुआ, फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर रेप्लिकेशन इज व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी, है ना। सो पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या होगा, आपके पास एक डिफरेंट नंबर हो जाएगा। सपोज आपको पता है कि ह्यूमन सेल में 23 पेयर हैं, लेकिन व्हाट इफ 23 पेयर की जगह 46 पेयर हो मेरे पास। ठीक है, so that is what is polyploidy, when you have extra set of chromosomes or extra set of your DNA is there inside the cell. सेल को डिवाइड होना था लेकिन वो हुआ नहीं, लेकिन रेप्लिकेशन हो गया। सो उस कैटेगराइजेशन को या फिर उस सिचुएशन को हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, नाउ this is just a gist of whatever we have learned till now, so I'll just finish it up. See, enzymes are very important whenever you're talking about DNA replication. Also, the steps are very important. So these are the 4 enzymes what they have spoken in your textbook. They have only spoken about these 4, but there are others also what I have actually explained. So सबसे पहले क्या है, हेलिकेज। मैंने आपको बोला था हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंड करता है डीएनए के डबल हेलिक्स को। कहाँ अनवाइंड करेगा, ओनली एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो अनवाइंड करेगा, और अनवाइंड करेगा तो क्या बनेगा, आपका रेप्लिकेशन फोक बनेगा, विच इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, आरएनए प्राइमर एंजाइम आएगा। आरएनए प्राइमर एंजाइम क्या है, आरएनए प्राइमर एंजाइम वो एंजाइम है जो कि इनिशिएट करता है, इट बिल्ड्स अ आरएनए प्राइमर। यू कैन सी द कलर हियर। सो ये रेड जो फर्स्ट हमारा ब्रिक है वो उसने डाल दिया, सो दैट इज योर आरएनए प्राइमर। एक बार आरएनए प्राइमर आ गया, देन आपके पॉलीमरेज का काम बहुत ही आसान है। पॉलीमरेज का काम क्या है, मैचेस एंड लेज डाउन न्यूक्लियोटाइड टू बिल्ड द डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बेस्ड ऑन द कोड्स रिटन ऑन द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। आपका नए डीएनए स्ट्रैंड जो है वो उसी की कॉम्प्लीमेंट्री पे बनता रहेगा। बट यहाँ पे देखिए आपका जो प्राइमर है वो एक ही बार लगा है,
and you are getting the whole strand in which direction? Just look at the direction, 5 prime to 3 prime डायरेक्शन में आपका बनता रहेगा. ठीक है, सो ये हमारा स्ट्रैंड क्या हो गया? ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया. लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं दूसरा देखूं जो कि 3 प्राइम की साइड में बनना है, नया स्ट्रैंड हमारा 3 प्राइम की साइड में बनना है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे मुझे आरएनए प्राइमर चाहिए, क्योंकि हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो कौन से डायरेक्शन में बना सकता है? वो सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनाएगा, तो वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स ही बना पाता है. और ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स है वो हमारा होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. एंड ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होंगे? एट द एंड हमारा डीएनए लाइगेज जो है, it comes and it joins the adjacent Okazaki fragments on the new DNA. So ये आपका नया डीएनए स्ट्रैंड में डीएनए लाइगेज ने आकर के बंद कर दिया. इसके अलावा मैंने आपको बोला था टोपो आइसोमेरेज के बारे में. टोपो आइसोमेरेज क्या है? वो हमारा टेंशन दूर करता है. पेरेंटल डीएनए जब अनवाइंड होता रहता है, तो जो एरिया अनवाइंड नहीं हुआ है वहां पे टेंशन क्रिएट होता है, तो उसको अनवाइंड, उस टेंशन को रिलीज करता है आपका टोपोआइसोमरेज एंड गाइरेज प्रोटीन. और यहाँ पे क्या है? सी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. ये क्या करते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड पेरेंटल डीएनए से चिपके रहेंगे और इनको वापस से एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बनाने देंगे. दैट मीन्स दे हेल्प इन कीपिंग अप द वाई फोक स्ट्रक्चर ओपन. ठीक है, सो these are the various enzymes which are used in your DNA replication on in whole, and this is your DNA replication. I hope the things are very clear, you can understand. You also have many videos which will make it more clearer to you. I'll keep some of the I'll keep one of the link in my description box, so you can check the videos as well. And it's very easy to understand with the animated videos how exactly your DNA doubles up. Fine. So that's all for today. Thank you. Take a very good care of yourself, and we'll meet again in the next video.